So having Anand, so in that context, moving on, so the recent conversation on Twitter, right, about the Zerodha guy's हाँ, market, नितिन कामत। right? Nitin हाँ। Kamat's estimate of the market, right? So what's your view, Farid? Frankly, I'm really very excited that according to his calculation, 150 million people are earning, right? Which means at least 450 million people are spending, right? Because one person will earn. India, not everyone is earning, right? So there's dependency, right? I think 450 million people spending today, which increases to approximately 600 million in the next 3 years, 4 years. Not a Yeah, I bad number. completely agree with What that, do you sir. say? Matlab, end of the day, we have a major trickle down effect in our economy, and if we are able to translate that spending of those households, those 150 million households, which translates to about 450 million people, uh, I don't think it's a bad number. It's actually a very good number because back in the day when we started out, we were looking at 30 million people spending. Like जब हमें लगता था क्योंकि vast world के time पर Yeah, yeah, नहीं, that's नहीं, ये तो exactly. हाँ, पिछले yes 10 साल से तो मार्केट काफ़ी बड़ा हो गया है। आनंद 10 साल भी नहीं आनंद 2015 में आई रिमेम्बर मल्टीपल पीपल यूज्ड टू से दैट द टोटल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स ऑन ई कॉमर्स मतलब रियल वंस मतलब who basically buy regularly not the ones who only buy once in a year kind of right thing that was 35-40 million that was the number, right? So from there if this number is looking more like today, if you go by the numbers, it will be more like 250 million because right 150 million are the people who are earning, right? So we assuming another 100 million people are also spending from there on e-commerce, right? So that's like a 7-8x jump, right? How fast can this go? तो इट इज़ अ वेरी गुड डिस्कवरी। एक्चुअली इंडिया का ना खाली ये एंगल नहीं है कि लोग कम हैं, मतलब पैसे वाले लोग कम हैं। जितने भी हैं 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 45 करोड़, आई मीन शेयर चैट का मार्केट तो डेफिनेटली 45-50 करोड़ लोग हैं, साथ मतलब में कम आराम से, उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में ट्रेडिशनल कंपटीशन कुछ भी नहीं है। कोई भी फील्ड Yeah. ले लो, इनकम्बेंट तो बहुत छोटे हैं, Yes. और इनकम्बेंट में कोई एंटरप्रेन्योर incumbent स्पिरिट भी है नहीं है but कि जो बहुत दे विल फाइट fragmented बैक। है like the market that we have gone after like when Fragmented we है. look at new media like share chat को आप new media की तौर पे देखेंगे share chat को मौज को टकाटक को we are new media so new media products will basically replace old media products but old media products बहुत ही fragmented है like nobody has actually got a bunch of newspapers TV channels radio channels together other than probably like the Times group or maybe the करेक्ट। yeah Enadu group Enadu the group. South में ETV group Enadu group in the south. Right? नो, एंड दोज पीपल जी हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, एंड येट इसके बावजूद भी पैन इंडिया ब्रांड नहीं है कोई भी। नहीं पैन इंडिया तो एक कुछ भी कोई नहीं है। सिंगल ब्रांड नहीं है जो पूरा देश पढ़ता हो। हाँ पटना में right जाओगे आप तो वहां पे सबसे ज्यादा नवभारत टाइम्स अलग चलता है। है, राइट? हाँ। और महाराष्ट्र में और लोकमत है और सकाल yeah मतलब नहीं, आप आप गुजरात जाओगे, गुजरात समाचार है। हाँ, और महाराष्ट्र में सकाल है, और राजस्थान में भास्कर है, तो मतलब right ये एक सिंगल ब्रांड है नहीं। तो हाँ एंड अगर मतलब एक मीडिया प्रॉपर्टी जो पूरा देश पढ़ रहा है, yeah so वैसी तो नहीं है। यस एंड दैट इज ट्रू अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एक्चुअली कहीं पे भी कुछ भी इतना बड़ा नहीं है। exactly देखो, बैंक में भी देखोगे अगर, तो मतलब शहर है जो सिटी स्लिकर्स हैं, दे विल हैव एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, एंड साउथ बॉम्बे विल हैव सिटी बैंक। बट अगर तुम गांव में जाओगे तो स्टेट बैंक yeah होगी, उसकी ब्रांच होगी, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक होगी, मतलब बैंकिंग भी फ्रेगमेंटेड है। जबकि जबकि बैंकिंग में मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है टॉप 4 बैंक्स का, फिर भी बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत लॉन्ग टेल है। and still India is underbanked यस, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे खाली नंबर की नहीं है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि ट्रेडिशनल कंपटीशन बहुत फ्रेगमेंटेड है। कोई बड़ा मैसिव प्लेयर नहीं है कि आपका कंपटीशन अपने आप से है।
टू वांट टू एक्सपैंड द मार्केट, आपको हाँ, कम आरपू का काफ़ी अफोर्डेबल, फ्रिक्शन फ्री बनाना पड़ेगा, लेकिन Yes. मार्केट बड़ा है काफ़ी। Yeah, actually, this is very important. And what you are saying is that the real effort, लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट पे काम किया नहीं है, राइट? सो एंड टू बी फेयर टू देम, इंडिया में जो प्रोडक्ट का पूरा फिनोमिना है, ये पिछले 5-7 साल का ही फिनोमिना है। उसके पहले तो ज़्यादातर लोग जो भी स्टार्टअप करने की सोचते भी थे या जो अपना नया कुछ खोलना चाहते थे, तो मोस्टली इन द सर्विस डोमेन्स, राइट? तो सोचते थे कि कोई एक सॉफ्टवेयर बना दे जो यूएस के क्लाइंट को बेच दें सेल्स टीम लगा करके, राइट? और दैट वाज बेसिकली द आइडिया, राइट? सो आई थिंक टैलेंट भी नहीं था 2012 13 14 में जब हम लोग इन्वेस्ट करते थे, तो finding design talent, right, or finding product talent was uh, very tough, right? And it was not even a question of expensive, right? Today at least you will have to pay a lot, but आपको कुछ मिल Right. जाएगा। उस समय तो Actually, कोई मिलता ही like नहीं था। अगर आपको याद हो, मतलब 2014 when we came to your office the first time, एक फंडा चल रहा था सोलो मो का कि next thing in social would be social, so in on next thing on the internet would be social, local and mobile. And I remember कि जो उस समय भी मोबाइल या startups थी, even the top startups, they were all web based. And web based में product इतना important कभी हाँ, बन नहीं पाया था, क्योंकि वेब पहुंचा ही नहीं था इतने ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि डेस्कटॉप नहीं था इतने ज्यादा लोगों के पास। तो when mobile happened, when that Solomo movement हुँ, happened overall everywhere, uh, and the people got the smartphone, only then that opportunity for that talent to groom up and that ecosystem to thrive बना भी पहली बार। मतलब विदाउट दैट यूजर डिस्ट्रीब्यूशन बेस, मतलब आई नो कि हाँ, हायर आरपू सैस ऑडियंस, सैस कंज्यूमर यूएस के लिए बना रहे थे लोग यहाँ पे सर्विस, लाइक सॉफ्टवेयर फॉर एज सर्विस, बट अगेन दो सॉफ्टवेयर वर लाइक दे वर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट वर्क। सो जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी यहाँ की, आईटी इंडस्ट्री, उसमें वो टैलेंट कभी ग्रूम हुआ नहीं, कभी बनाया गया ही नहीं। it only happened after the smartphone revolution. तो हुँ, हुँ। And I will extend that analogy to say that some of the companies which became big also, they were just masquerading as tech companies because they were actually call centers, right? And I think still there are a lot of them, right, who are not really a tech companies, right? Because they just have a front end, but eventually everything happens on phone. यार ये तो मैं मानता हूँ कि देयर इज़ अ मैसिव शिफ्ट ऑफ इंडियन टैलेंट इनटू बिकमिंग स्टार्टअप बिल्डर्स, क्योंकि ये सारा टैलेंट हमारे जो देश के अच्छे से अच्छे लोग थे या तो बाहर जा रहे थे या इंडियन आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो कोई भी जो टैलेंटेड लोग थे वो इंडियन बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, मतलब इंडियन पीपल के लिए, इंडियन लोगों के लिए इंडियन प्राइस पॉइंट पे सोलोमो बेसिस पे प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे। अब लेकिन मैं फरीद, अभी तुम भी मतलब बाहर काफ़ी घूम रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं ऑफलाइन, कहाँ कहाँ घूम रहे हो। तो जैसे मैं यूएस गया और एंड आई अनफॉर्चुनेटली आई वेंट आफ्टर अ गैप ऑफ 6 years। तो मुझे काफ़ी स्टार्क डिफरेंस दिखा इस बार कि इंडियन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल अराउंड यूपीआई, अराउंड फॉर एग्जांपल आवर कोविड सॉफ्टवेयर और सर्टिफिकेशन सॉफ्टवेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, इवन इवन यूएस से भी। तो तो मार्केट छोटा है, लेकिन हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट होगा, क्योंकि जो जितना पेनिट्रेशन का डेप्थ हम लोगों ने अभी अचीव किया है पिछले 4-5 साल में, अगर वो अगले 4-5 साल चला तो मार्केट डबल ऐसे ही हो जाएगा। right. Yes, yes, that's true. और आई थिंक ऑल्सो जो जरूरी चीज है कि अ, अब लोग प्रोडक्ट बनाने बनाना जान गए हैं, राइट? दे हैव लर्नड इट। और बहुत सारी कंपनीज जो अभी मतलब they are masquerading as tech companies, they are not really tech companies, they will all get disrupted because now the talent is there to build products. So I think the industries which I am specifically very bullish about, whether I will be able to invest or not I don't know, but gaming is one such category because I am seeing talent now which can actually pull off. Because 5 साल पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि they will be able to come up with नहीं,
ठीक बोल रहे हैं मधुकर, इंडिया में मतलब मोबाइल ऐप का टैलेंट आया, फिर भी गेमिंग का टैलेंट नहीं आया था अभी तक, अब वो भी आ रहा है। एग्जैक्टली, अब दिख रहा है, अब आई हाँ, कैन सी दैट हैपनिंग, राइट? दिख So रहा I है वो। think we are on the right direction. I think there is a lot of froth जो हो गया था in the last 2 years, और अर्ली स्टेज पे बहुत कैपिटल आ गया है, सो सबको पैसे मिल रहे हैं, which is not bad because then it basically broadens the uh, entrepreneurship base, and eventually it is a game of outlast, so smart ones will figure it out. हाँ, ये बात तो है मधुकर, देखो जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर बने हैं बिकॉज ऑफ द फंडिंग बूम, वो टैलेंट पूल कोई मल्टीनेशनल में तो काम नहीं करेगा अब, ये बात तो पक्की है। वो वंस And एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एंटरप्रेन्योर। हाँ, तो एक बार एंड गलती करो तो दूसरे को करो। और अगली बार वो अच्छी आइडिया सोच के आएंगे और ढंग से सोच के आएंगे और लंबा गेम खेलेंगे, ना कि एट द मतलब खाली सेम फंडिंग टाइम आनंद, खेलनी है। ये सारा टैलेंट जो मल्टीनेशनल में बैठा हुआ था नाउ, अब वो अक्वायर होगा या एक्वायर भी होगा। बहुत सारी जो अनलकी रह जाएंगे, वो अक्वायर होगा, एक्वायर होगा, और वो हाँ, अक्वायर एक्वायर बाय हाँ, एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स ही होगा। तो जो हमारा नेट स्टार्टअप टैलेंट पूल है वो हाँ, हाँ, इम्प्रूव ही होगा वो यहाँ से। नहीं है। एंड दीज पीपल विल आल्सो बिकम वीसीज। नहीं नहीं, स्टार्टअप फाउंडर और स्टार्टअप स्टार्टअप एम्प्लॉय जो बन गया, राइट, वंस अ स्टार्टअप एम्प्लॉय ऑलवेज अ स्टार्टअप एम्प्लॉय। आई डोंट या एक्सपेक्ट पीपल टू गो बैक टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो टैलेंट पूल तो बढ़ गया है, डेफिनेटली बढ़ गया है, लेकिन खाली फिर भी यही है ना कि थोड़ा सा ये जो एक वेव आ गया था कि फंडिंग के पीछे लोग अगर थोड़ा लंबा खेलें, अगर मतलब 10 साल का होराइजन रखें, 5 साल का होराइजन रखें अगर, तो बहुत कुछ बन सकता है। यस, वो तो है, मतलब वी हैव टू गिव सम टाइम, द इंडस्ट्री इज स्टिल मच नेसेंट। एक्चुअली 2019 तक तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, बट 2021 में with 100 unicorns formed, suddenly we are looking like a mature industry. But the reality is that this is इंटरनेट का तो सेकेंड ही वेव है इंडिया में, तो यार ये 2000। प्रॉब्लम मधुकर यहीं पे आ रहा है कि इंडिया का मार्केट अच्छा है फॉर somebody टू रीच a यूनिकॉर्न स्टेटस। द प्रॉब्लम इज कि मार्केट इज नॉट सो बिग कि you can keep investing after people become a unicorn, right? It's not that big also कि you invest at $1 billion and the company will keep growing at 100% all the way to $100 billion, right? So that we haven't reached yet, and that is probably one of the reasons, the disappointment will be at the late stage funding end, but that shouldn't bother a founder. Yeah, I think it's not the fault of the founder also, in the current environment where interest rates are zero or negative. People will come and invest in large economies even if they are investing, and they might have a much longer horizon than what we think, right? So maybe somebody who's investing at 2 billion valuation is willing to wait for next 10, 12 years before they start counting their returns, right? And we might be judging them for 3 years returns, right? So then it might be a मतलब mismatch, right? yeah, I completely agree with your points on, for a lot of the startups who probably would have not seen enough of the journey, जो एकदम से पहुंच गए, मतलब एटलीस्ट लाइक 5 years भी नहीं लगाया किसी ने, अगर लाइक 1.5 year लगाया, 2 years लगाया, एंड वो पहुंच गए, they might have a challenge, because but again I think, if you are lucky enough as an entrepreneur, you end up seeing a lot many downturn cycles, because that means you lasted long enough to go through it and grow during the good times and stay resilient and become a cockroach during the hard times. तो मतलब हमको तो ये बोला जाता था कि कॉकरोच स्टार्टअप, आप लोगों से ही डिस्कशन हुआ है इसके बारे में पहले भी, कि बी अ कॉकरोच स्टार्टअप। तो अब like I would rather want to be a cockroach masquerading around as a unicorn rather than a unicorn masquerading around as a cockroach. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नो, आई थिंक अच्छा है, मतलब ये मौका अच्छा है कि इतने सारे एंटरप्रेन्योर आ गए हैं। और अगर अगर मुझे लग रहा है, जो बात कर रहा हूँ मैं लोगों से, मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं कि बॉस कॉकरोच बनना है तो कॉकरोच बन जाएंगे, है ना। जब हमको लगा कि फंड रेज करना चाहिए, हमने फंड रेज कर लिया, अब कॉकरोच बनना है बन जाएंगे, और ये टिके रहेंगे लोग, ये बात तो पक्की है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ बिजनेसेस जो हैं वो मॉडल वॉडल चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअली अगर लेकिन कोई टिके रहेंगे मॉडल लोग, पे फंड हो गया छोड़ेंगे है नहीं। बहुत ज्यादा और मॉडल पे यूनिकॉर्न बन गया है,
तो जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट था अराउंड आइडियाज, दैट आइडियाज फंड हो रहे हैं कॉलेज लेवल पे, अगर एंड आइडिया से स्टिक कर रहा है फाउंडर, वो हाँ, थोड़ा सा थोड़ा क्या मेरे हिसाब से तो मतलब काफी डिफिकल्ट एंड टॉक्सिक सिचुएशन हो जाएगी फॉर द फाउंडर एंड द इन्वेस्टर, where the backing is all on the idea and not on the team, and the team has just grown to a very large valuation very quickly. ये फरीद, लेकिन जो स्मार्ट फाउंडर है ना, मतलब मुझे तो लगता है कि वो जाके बोर्ड को बोलेंगे कि दोस्त, आपने जो मॉडल फंड किया है और जो मैं सही खुद भी बात है। चला रहा था, वो सही मॉडल नहीं है। पैसा पड़ा है, टीम बहुत अच्छी है, एंड लेट अस नाउ पिवट एंड स्टार्ट समथिंग डिफरेंट, मधुकर, है ना? तो आई वुड बी डिसअपॉइंटेड मधुकर इफ आई आप तो डोंट सी अ लॉट ऑफ परेशान हो पिवट्स। जाएंगे आफ्टर 12 months। No, we are going to see it. No, we are going to, Yeah, no, no, we are going to see a lot of pivots, that's for sure. And I We think should, no, why not? they might be for different reasons, Anand. Maybe the willful pivots might be few, but you are forced to because you have raised so much of capital, that idea is not working, and you have so much of capital. What to do with that, right? So you will eventually do something else, right? So I think that might not be a choice. Fewer people will do it with choice. More people will be compelled to do that. But वो होगा, और हम लोग को तो ये देखना चाहिए कि more and more people are coming in entrepreneurship. At max, what do we lose, right? We will be a little bit inefficient in capital. But कौन सा हमारा कैपिटल अमेरिका में नहीं छप यार, रहा है, देखो, आ रहा है? इनएफिशिएंसी इनएफिशिएंसी तो मतलब हम लोग बोलते हैं हमारी स्टार्टअप हो के एफिशिएंट रहो, बट एट अ कंट्री लेवल या इनएफिशिएंसी या इज जस्ट वेरी मिनिमल ना। मतलब इतना भी क्या नुकसान हो गया कि मतलब $2-4 बिलियन बर्न बर्न हो गए, तो बिल्कुल, वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, और बिल्कुल, एंड डिस्प्रपोर्शनेटली इट्स क्रिएट हो रही है, और ये दिस शुड बी यूज्ड एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। yeah, yeah, it has a lot of compounding and long term effect, right? And I think the important thing for all of us, especially who are at well, we are in the system for a while, we have to make sure that we don't demonize, because a lot of mistakes have been done in the last couple of years in the era of free flow of capital, but उसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके और डेमोनाइज करके किसी को फायदा नहीं होने वाला है, देश को भी फायदा फायदा नहीं होने वाला है, इकोसिस्टम को भी फायदा नहीं होने वाला है, और किसी को पनिश करके हमको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा. वी हैव टू मेक श्योर दैट people who have done wrong, they accept their mistakes, then they are penalized for that, but it should not be stressed beyond a certain point, that the flow of capital as well as flow of entrepreneurs, that takes a hit, right? Because that will be really unfortunate. यार, आज यहाँ पे हमारे जो फाउंडर लोग जहाँ से आते हैं, वहाँ से अगर हर आदमी ये बोले कि यार मुझे यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न छोड़ो, मुझे 500 करोड़ 1000 करोड़ का रेवेन्यू वाली कंपनी बनाना है ना, तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। इतना आसान भी नहीं है बनाना, लेकिन खाली यही गोल हो अगर, तो मतलब बहुत सारे स्पेसेस है ना। जो भी नंबर जो डिस्कस कर रहे थे उस ट्विटर थ्रेड पे कि भाई 15 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं, तो आपको 1000 करोड़ 2000 करोड़ 500 करोड़ रेवेन्यू की कंपनी तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं, मार्केट रेडी है। Yes, I think I am very bullish about अभी जहाँ हम लोग हैं, where we are. I think every number is improving, and market has gone slow. It has probably gone into a slowdown. But anyways, we should look for long term. Long term में तो India is definitely a very positive story, and we should. फरीद, जो आइडिया इस उसमें हमने right. डिस्कशन में अभी किया था शुरुआत में, कि फाउंडर Yes, को yes. एक ग्रांट मिलनी चाहिए कि 1 साल 2 साल तक अच्छी आइडिया ढूंढ के लाओ, शुरू मत करो। मतलब क्या लगता है? सही है यार, मतलब बट बी प्रिपेयर्ड फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन आइडियाज। मतलब यही तो बोल रहा हूँ मैं कि खाली एजुकेशन मतलब आइडिया, आईआईटी का कोचिंग सेंटर नहीं खुलवाना है, आनंद इसीलिए आनंद हम बोले। एक्चुअली टाइम बाउंड अगर रखें ना, जैसे कि 2 महीना करना है, राइट? 2 महीने का खर्चा देंगे, 2 महीने के लिए पैसा देंगे, 2 महीना 3 महीना वट एवर, मतलब इज द 1.5 years 2 years is slightly more Yeah, but for people to build a product, test it out,
3 months is too less, no? You want them to No, no, have like, to discover something and to basically think about it, to come with a basic framework, I think that's a 3 to 4 month time is enough. yeah, फिर and क्या like होगा Farid जब is बाद saying, में we have to ban education मैं out अपना of that. बता सकता हूँ that मैं कंटेंट में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ. That is not something I touch because I know कि content is a very cutthroat field. And then of course I have ShareChat and Moj here. तो कंटेंट असाइड इसी वजह से मतलब मैं कंटेंट की आड़ में एडुकेशन में नहीं इन्वेस्ट करता. But then eventually, I came across one of the founders who said that, Hmm. for instance, that's Pratik Shukla from Masai, for instance, that he is providing education for an end goal. That end goal is employment. It's not, an education for the sake of education or education for the sake of a degree. Uh, यार ये अच्छा आइडिया है फरीद, कि अगर हम लोग जितना एजुकेशन का जो जो एंथुजियाज्म है, उसको उनको ये बोलें कि बॉस, डोंट डू टेस्ट प्रेप कोचिंग, डू डू एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट. yes, देयर एक्चुअली वी कैन हैव अ फ्यू डजन यूनिकॉर्न्स, yes. बिकॉज इंडिया में वो मार्केट तो बहुत बड़ा है. यस, फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे कि बहुत सारे टेस्टिंग जो यूएस में होती हैं आज की डेट में, वो हमारे यहाँ होती भी नहीं है. और हमारे यहाँ वो पॉलिटेक्निक एजुकेशन जो मिलती है या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिलते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एट पार विद वॉट वी वुड वॉन्ट अ सर्विस प्रोफेशनल टू हैव एज एन एबिलिटी और एज अ स्किल. एंड आई कम्प्लीटली अग्री कि ये मैं इसको एड्यू फिनटेक बुलाता था. उसके बाद देन आई put money in 3 4 startups. हम्म. One is teaching sales, the other is Propelled, which is sponsor like providing loans for vocational courses, and then there's Masai. So you know my point being here कि अगर कोई लेके आता है ना कि I'm sorry. इसमें और बन सकती है ना जी, फरीद, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, इसमें ऑफ और कोर्स. बहुत सारी एंड कंपनियां बन सकती हैं. ट्रेडिशनल कंपनीज हैं. ट्रेडिशनली हमारे पास ऑफलाइन लाइक प्री स्मार्टफोन वर्ल्ड में कंपनीज हैं जो बहुत लार्ज हैं. लाइक इफ यू रिमेंबर NIIT यूज्ड टू बी एवरीवेयर. देयर यूज्ड टू बी दिस मैक मैक कोर्सेज बोलते थे, क्या बोलते थे वो, या एनिमेशन वाले कोर्सेज वाले, दे वर एवरीवेयर. Like today, if you look at any Marvel movie or any एनिमेशन of these कोर्सेज. CGI driven या movies, उसके end credits में वो जो black screen पे credits चलते हैं, and उसमें आप अगर teams देखो, VFX teams देखो, 70% team members are all Indians or either of Indian origin या Americans. And what नहीं यार फरीद, जो मधुकर बोल रहा था कि गेमिंग कंपनियां आ रही exactly, हैं, yeah. तो विल नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंट Yeah, so इन there are इन द multiple such ग्राफिक्स डिजाइन. spaces that can pop up, and there have been companies which were again fragmented. अपने अपने local areas में सिखा रहे हैं, छोटे छोटे institutes हैं, एक region के institutes हैं. But centralized level पे कोई अगर अच्छा product बनाएगा, so it can definitely flourish. But yeah, the end goal is very important. Like coursework तो कोई भी बना के दे सकता है. Coursework तो almost जी. नहीं, यही दिक्कत है ना कि हाँ, बस वो यहीं पे हमको ये दिखना है कि भाई Yeah, फंडिंग जो हो रही है वो yeah. K-12 में हो रही है, टेस्ट प्रेप में हो रही है, या तो मैंने मैंने उसी से कोई उनको दूर K-12 निकालना है. टेस्ट प्रेप नहीं किया आज तक इन्वेस्ट, बिकॉज वो हमने भी नहीं वो किया. मुझे नहीं समझ में आता है. फर्स्ट एंड सेकंड मतलब इट्स एसेंशियली कंटेंट फॉर मी एट द एंड ऑफ द डे. एंड लाइक इफ इट्स नॉट एन लाइक इट्स आइदर an IP like content for which somebody is paying subscription money. मतलब how different is Netflix and Unacademy and Byju's. वो मतलब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब एज अ वेरी ओवरआर्चिंग व्यू लेवल मुझे थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट लगता है कि हाँ ये तो सेम ही बिजनेस मॉडल्स हैं. Yeah, I think these all are sales businesses, right? These are not education businesses, right? So because these are all आपको basically attention catch करना है. Netflix catch करता है attention by specific kind of content or specific celebrity, and others are basically catching the attention by fear mongering that if you don't do this, your kid will not do well, right? So I think those are more of sales businesses. बट एजुकेशन बिजनेसेस तो वैसे भी बहुत टफ होता है क्रिएट करना. बट मधुकर, हमको हमको चाहिए मसाई के जैसे कम से कम, मतलब सैकड़ों कंपनियां चाहिए देश में. हाँ आनंद, वो तो बेसिकली दैट्स रफली as big as a problem as the government system, right? So because you need to, आपको मिलियंस ऑफ लोगों को ट्रेन करना है और वो सब लोग ट्रेन, बट उनको एब्जॉर्ब करने के लिए फिर
वो भी चाहिए। नहीं नहीं, ये फरीद थोड़ा पैसा दिलवाओ यार, इसके लिए एक ग्रांट शुरू करते हैं कि कंपनीज विच आर इन द एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयमेंट स्पेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्पेस और हेल्पिंग पीपल टू गेट एम्प्लॉयड। एक्चुअली लाइक ये इसमें एक पूरी थीम खुल जाती है कि यार मतलब इंडिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर फिर से आस लाइक इफ वी कैन हैव अ न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन like considering this 4G everywhere, smartphone boom, हाँ, considering a very young population, and where we are doing a lot of upskilling and then absorbing them in the industry itself for our own, consumption as an economy. So, that theme itself is a very fundable. Like I believe it should be fundable, but I do not know is एकदम वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली थीम एकदम अभी तक फंडेबल। बेची नहीं गई है. और इसका मार्केट है ना, ये मार्केट सारा का Yes. सारा ये 10-15 करोड़ के लोगों के बाहर का This मार्केट है, expands तो our इसमें market. मार्केट साइज की लिमिट नहीं है। यहाँ पे जेन्युइनली 140 करोड़ का मार्केट है। हाँ, ये पूरा 140 करोड़ का मार्केट है। इनफैक्ट आई फील कि सारे जो स्टार्टअप के अंदर जितने भी लोग हैं, सबको इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बट आनंद, यहाँ पे तो यू आर क्रिएटिंग बोथ द डिमांड एंड सप्लाई, दोनों आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो मार्केट का तो साइज का कोई इशू ही नहीं है, यार बिकॉज यू आर the world क्रिएटिंग। is that as long as the jobs are, you know, stuff which can be exported, तो मार्केट तो एक्सपैंड हो जाएगा डिमांड साइड पे भी। पॉसिबल। बट टेक, रिमोट तो सिर्फ टेक ही होगा ना, आप सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं आप कर पाओगे वो। नहीं, और दिक्कत ये है ना कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी तो मैन पावर की प्रॉब्लम तो आ ही रही है, ऑलरेडी आ रही है। बिल्कुल। नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन। थोड़ा बहुत शायद हम लोग इसके ऊपर काम कर पाएँ। बढ़िया, थैंक यू गाइस।